Hi everyone. So let's see this set. Okay, before we move ahead, if you not solve this set, I would highly recommend to pause the video, solve the set, then watch the solution. Apart from this, you can simply check out the description. There is our community link. You can join the community. You will find this set available there. You can go there and solve the set, then come for the solution. So let's see the set. So let me zoom it a little bit. So it is mentioned that the current president of US is meeting five former presidents to consult them on US foreign policy. Okay, so the current president want to meet with the former president to consult on US foreign policy. Okay, the there are five former president: Bush, Carter, Clinton, Obama, and Trump. Okay, so these are the five former president. Okay, and post retirement the five former president settled in exactly one of the following cities. Okay, तो वो exactly एक city में किसी एक city में settled हो चुके हैं after the retirement. Okay, so these are some cities name. Okay, not necessarily in the same order. Okay, so order may vary. Might be Bush lives in Boston, so order may vary. Each of the five president is an expert in the US relation with exactly one of the five country. Okay, so till now what I learned, these are the president जो है ये कहीं पे रह रहे हैं. Okay, let's say Obama. So Obama was living around might be in Chicago, or the country he has a US relation. Okay, exactly, like he's expert in US relation was, let's say, Germany. And yeah, this is what the thing. तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो इट मीन्स इट इज़ क्लियर टू मी. मुझे क्या बनाना है, मुझे एक टेबल बनाना है जिसमें मुझे तीनों को अरेंज करना है. सो या इजी टू रीड, मतलब यहाँ तक समझ में आया क्या करना है मुझे. लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट सो दैट वी विल परस्यू अहेड की टेबल बनाना है कैसे करना है. Former president who is an expert on Japan settled, not settled in New York. Okay. Trump, Obama, expert on Germany or Japan. Okay. Not expert on Germany. So not वाले ज़्यादा conditions हैं. So yes, let's see. Questions क्या पूछ रहे हैं? Questions कैसे हैं? The city is settled in uniquely determined. Okay. मतलब there is possibility, there are cases. ये तो समझ में आ रहा है. So next question was settled. Okay. If क्वेश्चन आगे मतलब यस केसेस बनेंगे. इट इज क्लियर एंड बिकॉज दीज आर द आल्सो स्टेटमेंट मे बी करेक्ट मे बी नॉट, सो इट मीन्स द केसेस वाज देयर. सो लेट मी मेक अ टेबल. ओके, तो या देयर इज टू वे एज आई टोल्ड यू. वन इज टू मेक अ टेबल, एक तो आप टेबल बना के कर सकते हो. सेकंड वे वाज द डिफरेंट वन which I would like to go with that. वो सिंपल है, like a tick cross. If you know the tick cross method, you know कि क्या कर रहा हूँ मैं. So give me a moment, let me make a table. Yeah. So yeah, this is a table. So yeah, read the points. What it is mentioned in the point. The former president who is an expert on Japan. So someone who is expert on Japan. So here is Japan. You can see here Japan has not settled in New York. तो वो न्यूयॉर्क में सेटल नहीं हुआ. ओके, सो टेबल भी समझ लो मैं क्या किया. मैंने टिक क्रॉस के लिए बनाया है. ये आई हैव मेंशन्ड अ पर्सन्स दोज हु आर लाइक प्रेसिडेंट्स, जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके नाम. यहाँ पे वो दे आर लाइक और गुड हैव गुड रिलेशन विद दिस. देखिए कि इसमें से किसी एक के साथ अच्छा रिलेशन होगा. सिमिलरली हियर इज द सिटीज वेयर दे लिव पोस्ट देयर रिटायरमेंट. सो आई होप यू अंडरस्टूड. दैट इज एज इट इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट पॉइंट, like those who have an expert in Japan was not live in New York. And please avoid the background noise. Actually nearby my like a home there was a construction ongoing. Trump and Obama are not expert on Germany or Japan. So Trump was not expert on Germany or Japan. तो जापान के एक्सपर्ट नहीं है, जर्मनी के नहीं है. सिमिलरली फॉर ओबामा, नॉट एक्सपर्ट ऑन जर्मनी एंड जापान. सो या फर्स्ट पॉइंट डन. सेकंड पॉइंट डन. क्लिंटन इज नॉट an expert on Australia or India. So Clinton was someone. Okay, Clinton was not expert on India and Australia. So cross कर दो इसे भी. Third done. Bush and Carter have not settled in Chicago or Miami. So Bush and Carter शिकागो में नहीं रहते एंड मायामी में भी नहीं रहते. तो क्रॉस कर दो यहाँ पे.
नीदर ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट ऑन चाइना एंड इंडिया। तो इन दोनों में से कोई एक्सपर्ट चाइना और इंडिया का नहीं है, तो इंडिया और चाइना का क्रॉस कर दो। सो फोर्थ पॉइंट डन। ओबामा इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इंडिया। ओबामा इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इंडिया। ओके, सो ओबामा यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है। सिंस जैसे ही मुझे पता चला ओबामा यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है, द ओनली वन पर्सन लेफ्ट हु इज द एक्सपर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज ट्रम्प। सिंपली टिक कर दो यहाँ पे, एंड रेस्ट टू इज कैंसिल कर दो। द फॉर्मर प्रेसिडेंट हु इज एन एक्सपर्ट ऑन ऑस्ट्रेलिया हैज नॉट सेटल्ड इन मायामी पोस्ट हिज रिटायरमेंट। सो द प्रेसिडेंट हु इज एक्सपर्ट ऑन ऑस्ट्रेलिया, जो भी ऑस्ट्रेलिया के ये थे, ये मायामी में नहीं है। ओके, तो ये मायामी में नहीं है। यस, डन दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, द सेवेंथ वन, द फॉर्मर प्रेसिडेंट हु सेटल्ड इन शिकागो पोस्ट हिज रिटायरमेंट। ओके, तो समवन हु सेटल्ड इन शिकागो, हियर इन शिकागो, यहाँ पे जो सेटल हुए हैं, इज नॉट एक्सपर्ट ऑन जर्मनी। तो ये जर्मन के एक्सपर्ट नहीं है, नीदर जापान, और जापान के भी नहीं है। ओके, डन दिस पॉइंटर। Trump and Obama have not settled in New York or Chicago post their retirement. So Trump, where is the Trump? Not settled, very not settled. न्यूयॉर्क में नहीं सेटल हुआ और शिकागो में नहीं हुआ। सिमिलरली फॉर ओबामा, ही इज ऑल्सो नॉट सेटल्ड इन न्यूयॉर्क एंड शिकागो। नाउ सी हियर, शिकागो में सब चले गए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, एंड दिस इज नथिंग बट क्लिंटन। क्लिंटन ही यहाँ पे हमें, जैसे मैंने क्लिंटन फील किया, आई नो कि जो भी शिकागो में है वो जर्मन और जापान का एक्सपर्ट नहीं है, तो जापान में भी क्रॉस कर दो, जर्मन में भी क्रॉस कर दो। सो ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट फॉर क्लिंटन इज चाइना। सिमिलरली चाइना यहाँ पे हो गया, ऑलरेडी अब कोई और चाइना में आ नहीं सकता है, तो ये कैंसिल हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे फिल किया कैंसिल, यू कैन सी ओबामा पे के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, डेट इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया जैसे हो गया, लेट्स क्रॉस दिस, क्योंकि यहाँ पे तो हो चुके ऑलरेडी। नाउ या आई थिंक डन, यहाँ तक तो हो गया है। एक पॉइंट और बचा, आई थिंक, यस, एट पॉइंट गया। कार्टर इज नॉट एक्सपर्ट ऑन जापान। सो कार्टर इज नॉट एक्सपर्ट ऑन जापान, तो जापान में एक्सपर्ट नहीं है, तो जर्मनी बचा है, एंड दिस इज डन। फॉर जापान के लिए एक ही ऑप्शन है, दैट इज बुश। सो या वी हैव डन ऑलमोस्ट, यहाँ तक तो हो गया। लेट्स सी और क्या हो सकता है। लेट्स सी दिस पार्ट, वी आर एबल टू डू और नॉट। सो या, बिकॉज दोज हु ही एक्सपर्ट ऑफ जापान ही डोंट लिव इन न्यूयॉर्क, तो बुश तो न्यूयॉर्क में नहीं रहेगा, दिस क्लियर कि बुश न्यूयॉर्क में तो नहीं होगा। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के कौन है, ओबामा। अगर ओबामा ऑस्ट्रेलिया से, तो मायामी में नहीं हो सकते, तो मायामी कैंसिल कर दो यहाँ पे, राइट। एनीथिंग एल्स यू कैन डू? क्लिंटन, क्लिंटन, क्लिंटन चाइना है। इज देयर एनीथिंग वी हैव मिस्ड? ही इज लिविंग इन शिकागो। ओके, क्लिंटन शिकागो में तो कंफर्म हो गया ना, तो क्लिंटन का ये ऑप्शन तो चला गया ना, क्लिंटन शिकागो में फिक्स है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। तो सी मायामी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन, दैट इज ट्रम्प, एंड ट्रम्प का जैसे ही वो फिल हुआ, बाकी दो ऑप्शन क्रॉस कर दो। सिमिलरली न्यूयॉर्क में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यू कैन सी हियर कार्टर, क्योंकि और किसी में मैं डाल नहीं सकता, बिकॉज सारे क्रॉस हो चुके, तो कार्टर ही एक ऑप्शन रहेगा। नाउ दिस आर द ऑप्शन, बुश एंड ओबामा वी कांट से, बिकॉज बुश यहाँ भी हो सकता है, ओबामा यहाँ भी, तो दिस इज द ऑप्शन। सो लेट्स सी, अगर आप चाहते हो इसको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में नीचे लिख लो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इट टुक अ टाइम लिटिल बिट, बट या आप लिख सकते हो। लेट्स ऐसे लिख दो आप कि बुश, एंड बुश इज वेर इज द बुश, जापान, एंड ही वाज समवेयर मतलब एटलांटा में होगा, और या फिर बॉस्टन। सो दिस का काइंड ऑफ थिंग यू कैन राइट, बट आई प्रेफर कि यहाँ से मैं मार्क कर सकता हूँ क्वेश्चन, तो आई वुड गो विद दैट। ओके, और यू कैन राइट इट। ओके, सो लेट्स come to the questions and see what is the question asking. The cities settled in post-retirement as well as the country of expertise can be uniquely determined for how many of the five former president. तो किसके uniquely determined? You can simply see दो के तो नहीं दिख रहे हैं, इन दोनों का हम determine नहीं कर पाए completely. So only three, तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री। Okay. The second question, who has settled in New York post his retirement? तो न्यूयॉर्क में कौन सेटल हुआ है? कार्टर, ऑप्शन ए इज द आंसर। If Obama has settled पोस्ट हिज रिटायरमेंट, ओके, अटलांटा, इन अटलांटा, ओबामा अगर अटलांटा में होंगे, ओबामा इज हियर, बुश मस्ट बी हियर, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं बचा है।
तो इसका आंसर आ जाएगा, बुश के बारे में पूछा है, पूछा है सेटल इन कहाँ पे होंगे बुश, तो बुश होंगे बॉस्टन में, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डेफिनेटली करेक्ट। तो हियर वी हैव टू सी, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे लिख लोगे इस तरह से तो दिक्कत नहीं आ जाएंगी। लेट्स सी फिर भी। ओके, कार्टर शिकागो जर्मनी। कार्टर, ओके यार, ये तो ऊपर चला जा रहा है। ओके, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे जरूरत भी है उसकी। सो यू कैन सी हियर कार्टर हु इज इन जर्मनी, यस, बट ही इज नॉट इन शिकागो। शिकागो में नहीं है, न्यूयॉर्क में है, तो ये तो ऑप्शन है तो आउट हो गया। नेक्स्ट, ट्रम्प। ट्रम्प मायामी, यस, ट्रम्प इज इन मायामी एंड ही इज द like he has a good relation with India, yes, so option B is the answer. I don't need to check other because obviously बात है यार, एक ही आंसर होगा, दो तो होगा नहीं। फिर भी अगर आपको तसल्ली के लिए चेक कर सकते, बिकॉज यहाँ 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 पे एक ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव, सो आई हैव टू चेक अदर। लेट्स सी क्लिंटन, क्लिंटन पे देख लो। क्लिंटन इज लिव इन बॉस्टन, नहीं बॉस्टन में तो नहीं रहता, तो चलो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Clinton has settled in Chicago. Okay, these are the two statements. What can be said about these two statements? The first statement, Clinton has settled in Chicago post his retirement. So Clinton has settled in Chicago. Yes, he is settled in Chicago. Clinton is an expert of China. Clinton जो expert China का, yes, he is an expert of China. So both statements are correct. So option C is the answer. The set was not very difficult. It depends on your approach also. If you do in this way, like if you simply make a three table like a boxes, and then you start filling these boxes, like here is the person and here is the country, here is the city, then you might find this a little bit difficult to solve, because होता क्या है ना, यहाँ पे और में ऑप्शन है, तो आपको बहुत सारे कंडीशन यहाँ बनाने पड़ेंगे। सो इफ यू थिंक लिटिल क्रिएटिवली, लाइक आई थॉट मैंने यहाँ पे बना दिया, चलो टिक क्रॉस से करके देखते हैं। सो इफ यू आर एबल टू थॉट इन दिस वे, यू कैन फाइंड इट, द सेट इज वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट इन 6 to 7 minutes. Okay, max to max 7 minutes. And apart from this, if you are solving by this method, it will took you time around 20 minutes भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, आप कैसे अरेंज कर पा रहे हो, आप हर एक पॉइंटर्स को बार बार कहीं स्टेटमेंट पे नहीं जा रहे। तो येस, दिस इज ऑल्सो थिंग, आप बार बार स्टेटमेंट पे जाओगे तो टाइम आपका कंज्यूम होगा। सो आई होप यू लाइक द सेट। If when it comes to difficulty level of the set, I would say it not very tough, but yeah, not very easy also. So it is between easy to moderate. It is between easy to moderate. For some people, it will be moderate because the way of solving, and some find easy if you solve by this method. Do let me know in comment section कि आपने इस method से किया है या फिर इस method से किया। And also timing बताओ, कितने टाइम लगा, आपको कितना टाइम लगा। Okay, I hope you like the set. I wish you all the very best. जय सिया राम।